ایک ایسا ایئرپورٹ جس کا کوئی وجود ہی نہیں اور کوئی شخص اس کو $242 ملین میں سیل کر دے تو شاید آپ کے لیے اس پہ یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن در حقیقت ایسا ہو چکا ہے۔ جی، ایسا ایئرپورٹ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، ایک شخص نے بینک کو $242 ملین میں سیل کر دیا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور کس طرح 1995 میں ایک جعلی ایئرپورٹ $242 ملین میں سیل کیا گیا۔ اس کا آغاز ہوتا ہے برازیل کے نورو ایسٹ بینک کے ایک ڈائریکٹر سے، جن کو نائجیریا سے ایک دن اپنے آفس میں کال ریسیو ہوئی۔ دوسری طرف کال کرنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ نائجیریا کے مرکزی بینک یعنی نائجیرین اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا۔ یہ سینٹرل بینک ملک کا سب سے بڑا فنانشل ادارہ ہے، یعنی یہ نائجیریا کے تمام بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے اور فنانشل پالیسیز کا تعین کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو وزیر یعنی منسٹر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ برازیلین بینک کا ڈائریکٹر یہ سمجھا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ ایک دوسرے ملک کے اسٹیٹ بینک کا گورنر ڈائریکٹ اسے کال کر رہا ہے، تو یہ کوئی اہم بات ہوگی۔ نائجیریا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ ان کی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نائجیریا کے کیپٹل ابوجا میں ایک ایئرپورٹ بنایا جائے۔ یہ سننا تھا کہ برازیلین بینک کے ڈائریکٹر کی دلچسپی اس میں اور بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ نائجیریا کو اس ایئرپورٹ کے منصوبے کے لیے جو انویسٹمنٹ درکار ہے وہ اس کے لیے مختلف ممالک کے سرمایہ کاروں اور بینکوں سے بات کر رہے ہیں، اور اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تقریباً $242 ملین ہے، اور ہم اس کے لیے دوسرے بینکوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ یعنی گورنر یہ میسیج دے رہا تھا کہ ہم دوسرے انویسٹر سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچنے میں ڈیلے کریں تو کوئی دوسرا اس موقع کا فائدہ اٹھا لے۔ دوسری طرف برازیلین بینک کا ڈائریکٹر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ انتہائی پروفیٹیبل منصوبہ ہے کہ اس سائز کا ایک ایئرپورٹ بھی $242 ملین ایک یا 2 سال میں واپس کر سکتا ہے، یعنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ ROI 2 سال میں مکمل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پروفٹ۔ برازیلین بینک کا ڈائریکٹر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گورنر نے ایسی آفر دی کہ برازیلین بینک کا ڈائریکٹر آفر سننے کے بعد تو اس پروجیکٹ کے بارے میں زیادہ پرجوش ہو گیا۔ وہ آفر تھی $10 ملین، یعنی نائجیریا کا اسٹیٹ بینک $10 ملین برازیلین بینک کے ڈائریکٹر کو دے گا اگر وہ یہ ڈیل کرتے ہیں۔ $10 ملین کا سن کر ڈائریکٹر کو یہ ڈیل اور بھی زیادہ اٹریکٹیو پرکشش لگنے لگی۔ آخر وہ اپنے پیسے تو لگا نہیں رہا تھا، وہ بینک کے کسٹمرز کا ہی پیسہ لگا رہا تھا۔ تو برازیلین بینک کے ڈائریکٹر نے کال پر ہی انویسٹمنٹ کرنے کی حامی بھر لی، لیکن انفیکٹ دوسری طرف نائجیرین اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں بلکہ ایمینول نوٹی نامی شخص یہ بات کر رہا تھا، جس کا دور دور تک اس منصوبے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ نہ ہی کوئی ایسا پروجیکٹ اور نہ ہی کوئی ایسا ایئرپورٹ موجود تھا۔ آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور آ رہا ہوگا کہ ایمینول نامی یہ شخص کون ہے؟ انفیکٹ ایمینول نائجیریا کے ایک پرائیویٹ کمرشل بینک یونین بینک آف نائجیریا کا ایک ڈائریکٹر تھا، جو کہ ایک پرائیویٹ کمرشل بینک تھا، نہ کہ نائجیریا کا اسٹیٹ بینک۔ ایمینول نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح وہ دولت حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے ایسا منصوبہ بنایا کہ نائجیریا کے کیپٹل جہاں ابھی ایئرپورٹ نہیں تھا کے لیے انویسٹمنٹ تلاش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بینکنگ سیکٹر سے ہی جڑے 5 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ یہ تمام لوگ فنانشل اور بینکنگ سیکٹر سے تعلق ہونے کی وجہ سے کافی ایکسپیرینس تھے اور بینکنگ سیکٹر میں کام کر رہے تھے۔ وہ بینکوں کے طریقہ کار تفصیلات سے آگاہ تھے کہ نائجیریا میں بینکنگ سیکٹر کس طرح کام کرتا ہے۔ اس ٹیم کے پاس انٹرنیشنلی اور لوکلی ایسے با اثر لوگ جو مالیاتی اداروں سے وابستہ یا منسلک تھے کے بارے میں ذاتی اور نجی معلومات اکٹھی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایمینول نوٹی نے نائجیریا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا نام استعمال کیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک ایسا لیٹر ڈرافٹ کیا جو بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ نائجیریا کی منسٹری آف ایویشن کے ایک نمائندے کی طرف سے لکھا گیا ہے، جو کہ پلاننگ اور بجٹنگ کا ڈائریکٹر تھا۔ یہ ایک بہت اہم عہدہ تھا، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لیٹر میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ابوجا، جو کہ 1991 میں نائجیریا کا کیپٹل
डिक्लेयर किया गया था, एक एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की पेशकश की गई थी। और इस चीज़ ने इस कहानी को और ज़्यादा काबिल एतमाद बना दिया था, क्योंकि नाइजीरिया की गवर्नमेंट हकीकत में अपने नए कैपिटल सिटी को तरक्की देने और इसमें मुतअद्दिद प्रोजेक्ट चलाने के लिए संजीदा थी। ये लेटर कई गैर मुल्की बैंकों को भेजा गया था। इमैनुअल नोटी की टीम ने साजबाज करके इस लेटर को ऐसे नंबर से फैक्स किया जो कि सरकारी यानी गवर्नमेंट का नंबर था, जिससे इस लेटर की साख मजीद बढ़ गई थी। जैसे ही ये लेटर साकागुची, जिसका तल्लक जापान से था लेकिन ब्राज़ील में नोरो ईस्ट बैंक का डायरेक्टर था, को मिला, साकागुची ने ये लेटर पढ़ा और ये देखा कि ये एक नाइजीरिया के गवर्नमेंट के नंबर से फैक्स किया गया था और इसको नाइजीरिया के मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तरफ से भेजा गया था। इस लेटर पर नाइजीरिया के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड के सिग्नेचर भी मौजूद थे, जिससे इस लेटर की साख मजीद बढ़ गई थी और साकागुची ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। चूंकि इसका बैंक पहले ही इन्वेस्टमेंट के मौका की तलाश में था, साकागुची ने इस लेटर का जवाब दिया कि वो इस सरमायाकारी के मौका में दिलचस्पी रखते हैं और इस पर मजीद बात करना चाहते हैं। यहाँ पर इमैनुअल नोटी का किरदार सामने आता है, जिसने साकागुची से नाइजीरिया के स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर बातचीत की थी। साकागुची ने कहा कि वो इस एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और एक मुलाकात करना चाहते हैं जिसमें मजीद डिटेल पर बात कर सकें। इमैनुअल नोटी ने कहा कि हम अभी इस प्रोजेक्ट को खुफिया रखना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 4 या 5 साल तक शुरू नहीं होगा, इसलिए हम इसको शुरू करने से पहले इस प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं करना चाहते। इसलिए हम नाइजीरिया में नहीं बल्कि कहीं और लंदन में मिलते हैं, जिस पर साकागुची ने इत्तफाक किया। असल में इमैनुअल नोटी की टीम पूरी तैयारी करना चाहती थी। इमैनुअल नोटी गवर्नर बना था तो उसका एक साथी डिप्टी गवर्नर, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का डायरेक्टर। तो बज़ाहिर हर एक ने खुद को अच्छी तरह तैयार किया और एयरपोर्ट की ज़मीन और लोकेशन के मुतालिक भी रिपोर्ट्स तैयार की। लंदन में उनका स्टे एक 5 स्टार होटल के एक बेहतरीन स्वीट में था। साकागुची जब लंदन एयरपोर्ट पहुंचा तो उसको रिसीव करने के लिए एक लेमोजीन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। ये बात जहन में रहे कि उस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल इतना आम नहीं था, लिहाजा साकागुची उनकी तस्वीर या डिटेल इंटरनेट पर नहीं देख सकता था। इमैनुअल नोटी ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जो बज़ाहिर ओरिजिनल लगते थे। मज़ीद उसने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ पिक्चर्स भी तैयार करवाई जो इस कहानी में हकीकत का रंग भर रही थी। इमैनुअल ने एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट और ज़मीन के मुतालिक बताया जो एक झूठ था, लेकिन इमैनुअल ने साथ ही ये भी कहा कि वो इस मंसूबे को खुफिया रखना चाहते हैं जब तक हम इसकी बाकायदा तामीर का आगाज़ नहीं करते। साकागुची ने इस मौका पर कहा कि ठीक, जब भी आप इसकी तामीर का आगाज़ करेंगे हम आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इमैनुअल नोटी ने कहा कि नहीं, हम इस वक्त तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, रकम हमें फ़ौरी तौर पर चाहिए, क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ कंपनियों की खिदमात सर्विसेज हासिल करनी है, आलात फ्राहम करने हैं। मज़ीद इमैनुअल ने उस पर जोर दिया कि अगर वो इस डील में कंफर्टेबल नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत से दूसरे बैंक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको इसलिए तरजीह दी है कि आपने सबसे पहले हमें इस पर पॉजिटिव जवाब दिया था। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम $10 मिलियन का कमीशन उस शख्स को देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रकम का इंतज़ाम कर सके। साकागुची जो ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में था कि जिससे वो अपने बैंक के लिए अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके और साथ में $10 मिलियन का कमीशन भी हासिल कर सकता था, उसने इमैनुअल को कहा कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस मीटिंग के इख्तिताम से पहले इमैनुअल ने साकागुची से $30 मिलियन बतौर डिपॉजिट और सबूत के तौर पर मुंतकिल करने पर आमादा किया, जिससे सरमायाकारी के मौका की उनकी ख्वाहिश की तस्दीक हो सके। मीटिंग के इख्तिताम तक $30 मिलियन का डिपॉजिट ट्रांसफर हो चुका था। 1995 से 1998 तक 3 साल के दौरान साकागुची मुसलसल मिलियंस डॉलर इमैनुअल नोटी के कहने पर मुख्तलिफ बैंकों में ट्रांसफर करता रहा। साकागुची ने बैंक की इंतजामिया और मरकजी मालकान को भी इसका इल्म नहीं होने दिया। उसने हर ट्रांसफर में $6 मिलियन से जायद रकम मुंतकिल नहीं की। ये उसने इस वजह से किया कि $6 मिलियन से जायद होने की वजह से उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती, जो वो नहीं चाहता था।
दूसरा मरहला ये था कि ये रकम मुख्तलिफ 17 बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, जिसके लिए अमेरिका, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और हांगकॉन्ग के मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये रकम मुख्तलिफ बैंकों और मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान मुंतकिल हो रही थी, तो बैंक की इंतजामिया की टीम में से कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। इस तरह साकागुची ने 3 साल के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों और बैंक्स में ये रकम ट्रांसफ़र की। दूसरी तरफ इमैनुअल नोटी इस दौरान साकागुची को झूठी दस्तावेजात और मुआहदे भेज रहा था ताकि उसे ये बावर करवाया जा सके कि एयरपोर्ट के मंसूबे पर काम जारी है, और इससे मिलने वाली रकम इमैनुअल नोटी और उसकी टीम रियल एस्टेट और शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट करती रही। इन सब का ख्याल था कि अगर कुछ गैर मुतवक्का ना हुआ तो काफ़ी लंबे अरसे तक इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस मौका पर स्पेन का सेंटेंडर बैंक, जो स्पेन का सबसे बड़ा बैंक है, नोरो ईस्ट बैंक को ख़रीदना चाहता था। तो सेंटेंडर बैंक ने नोरो ईस्ट बैंक को अपनी इब्तदाई पेशकश से आगाह किया, जो नोरो ईस्ट बैंक को काबिल अमल लगा। तो बैंक की नेट वर्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए तमाम तफसीलात और असासों की जांच पड़ताल की गई, लेकिन उस वक्त उनको धचका लगा जब जांच पड़ताल से ये पता चला कि बैंक का तकरीबन 1/3 यानी 1/3 कैपिटल गायब है। आखिरकार इस सब की कड़ियाँ साकागुची की तरफ इशारा कर रही थीं। साकागुची को बोर्ड ने तलब किया ताकि वो बताएं कि गुज़श्ता 3 सालों में ऐसा क्या हुआ। साकागुची ने इस बात का इतराफ़ किया कि उसने नाइजीरिया के कैपिटल अबूजा में एयरपोर्ट की तामीर के लिए नाइजीरिया की हुकूमत के साथ सरमायाकारी का बड़ा मुआहिदा किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इल्म में लाए बगैर $242 मिलियन की रकम मुंतकिल की। लेकिन साकागुची की बात पर बैंक इंतज़ामिया ने यकीन नहीं किया कि बैंक को इन्फॉर्म किए बिना साकागुची ने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने तमाम मनी ट्रेल हासिल की और तमाम इशारे नाइजीरिया की तरफ थे। अब मसला ये था कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट के पास एक्चुअल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं था। इन्वेस्टिगेशन कमेटी इन लोगों यानी इमैनुअल नोटी की हकीकी शनाख्त तक ना पहुंच सकी। इस मामले पर काफ़ी टाइम लगा, यहाँ तक कि नाइजीरिया के बैंकों को वेस्टर्न बैंक्स और स्पेशली स्विस बैंकों के दबाव से मजबूर किया गया जब उन्होंने ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने नाइजीरिया के बैंकों से कहा कि वो उनकी असल शनाख्त ज़ाहिर करने में मदद करें। आखिरकार इमैनुअल नोटी और उसकी टीम तक जा पहुँचे, लेकिन यहाँ उन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ा, जो थी नाइजीरिया ऐसा मुल्क जिसके पास माली फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड के ख़िलाफ़ कवानीन ही मौजूद नहीं थे। इमैनुअल नोटी और उसका ग्रुप नाइजीरिया में आज़ाद रहे। उन्होंने कई अहलकारों को रिश्वत भी दी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल ना हो सकी। दूसरी जानिब सेंटेंडर बैंक और नोरो ईस्ट बैंक की डील कंफर्म हो गई, लेकिन ये सौदा असल कीमत से बहुत कम हुआ। साकागुची के खिलाफ स्विट्ज़रलैंड में माली फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुकदमा भी चलाया गया। उन्हें कई साल तक जेल की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन मसला ये था कि ज़्यादातर रकम नाइजीरिया में थी और नाइजीरिया की हुकूमत का उनके साथ ताउन करना नामुमकिन था। काफ़ी अर्से तक ये मामला ऐसे ही लटकता रहा। जब ओसांजो नाइजीरिया के नए सदर बने तो 2003 में उन्होंने फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के नाम से एक अदारा बनाया। साल 2004 में कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और इमैनुअल नोटी और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया। उनका ट्रायल अबूजा शहर में शुरू हुआ, लेकिन इमैनुअल नोटी ने बहुत बड़े वकला की खिदमत हासिल की और ज्यूरी को भी रिश्वत की पेशकश की। जब अदालत ने देखा कि इमैनुअल नोटी अपनी कोशिशों में कामयाब हो रहा है और पैसा पानी की तरह बहा रहा है, तो जज ने यह केस नाइजीरिया के शहर लेगोस में मुंतकिल करने का फैसला किया। लेकिन वहाँ भी इमैनुअल ने रिश्वत की पेशकश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। उस पर फर्द जुर्म में रिश्वत देने के इल्ज़ाम का इजाफा कर दिया गया, लेकिन इमैनुअल नोटी अपनी कोशिशों से बाज ना आया। केस की सुमात के दौरान वार्निंग आ गई कि कमरा अदालत में बम है। जब स्पेशल फोर्सेस ने आकर इसको क्लियर किया और कहा कि ये सिर्फ एक जाली धमकी थी जिसका मकसद मुकदमा को रोकना और इमैनुअल नोटी को फरार करवाना था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। अदालत ने इमैनुअल नोटी को ऑफर की कि अगर वो $80 मिलियन वापस कर दे तो उसकी सज़ा में कमी का सोचा जा सकता है,
लेकिन इमैनुअल नोटी सिर्फ $10 मिलियन वापस करने पर रजामंद था। लेकिन इमैनुअल नोटी ना माना तो अदालत ने एक गैर मुतवक्का गवाह साकागुची को पेश किया, जो नोरो ईस्ट बैंक का डायरेक्टर और इस सारी रकम के नुकसान का बुनियादी तौर पर जिम्मेदार था। जब इमैनुअल नोटी ने उसे देखा तो वो जानता था कि वो मुश्किल में पड़ गया है। साकागुची ने हर चीज़ का एतराफ़ किया और तमाम लेटर, कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सी दूसरी दस्तावेजात जो इस केस के मुतल्लिक थी अदालत में पेश कर दी। तब इमैनुअल नोटी $80 मिलियन देने पर रजामंद हुआ, लेकिन अदालत ने कहा अब $120 मिलियन की रकम वापस करना होगी। चूँकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो $120 मिलियन वापस करने पर रजामंद हो गया और इमैनुअल नोटी को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।